Okay. So good evening, everyone. Good evening. I hope all of you remember whatever we have studied in chemistry till now. Yes or no? Raise your hand. Yeah, there. Basics. Tell me. Yes. Very good, right? Okay. So let us see what we have covered till now. We covered basics. I guess all of you remember what all we have covered till now. Can anyone tell me, Sandhya? Sir, we studied about structure of atoms. Yes, structure of atoms, right? Very good. We studied first of all structure of atoms. Hai na? We studied what are atoms, what are electrons, protons, neutrons, and all those things, right? Yes, Then, sir, about valencies. yes, about valency, how valency is discovered, right? How we find valency, hai na? Right? Everything. Okay. And then after that, we studied how to find formulas, hai na? How to find formulas, how to write equations, yes or no? Right? I Yes, hope sir. all of you remember these things. Right, Bindu, Priya, Ananya, Jia, Sanjana? Yes, sir. Okay, chalo, very good. Right? So as I said, we will continue with that. Hai na? We will continue with that. We have studied these things. Hai na? So if you remember, the last topic that we studied was the type of reactions. Yes or no? Tell me. Right? Type of reaction was the last topic. So we discussed like displacement reaction, double displacement reaction. हाँ या ना? सबको याद है? Displacement reaction, double Yes, sir. displacement reaction. Yes, very good. Okay, very good. है ना? Right? Okay, so we will talk about right reactions more. ठीक है? I hope all of you remember basics. है कि नहीं? हम लोगों ने already I have already told in Monday's class that we will do chemistry, है ना? चलो. So let us have some small revision. Okay, small revision before starting that. Okay. Now the topic that we are going to study today is, or obviously we'll talk about a type of reaction. Okay. Now the type of reaction we discussed: single displacement reaction, double displacement reaction. The third type of reaction is called as neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay. Then your question should be, sir, what is this neutralization reaction? ये है क्या? होता क्या है ना? Now, before that, before studying this neutralization reaction, we will study about some special kind of compounds called as acid and bases. याद है सबको थोड़ा बहुत? है ना? हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, याद है? Right? Yes, sir. Yes. So I told you that we will study about these acid and bases in detail. हाँ या ना? Right? So before starting this neutralization reaction, we will start about acid and bases. Hai na? So, okay, we started. So I can say we will start a topic which is acid and bases. Acid and bases. Okay. Now, till now we have studied that acids. What are acids? Acids are sour in taste, hai na? Right? Yes or no? Bases are bitter in taste. These are the things that we have studied, right? Basic things. But when you talk about chemistry point of view, you know, when you talk about the exact definition, it is much deeper than we have studied. You know? So when you talk about acid and base, basically they're the type of compounds. They're the type of compounds. What type of compounds? So depends, right? It depends. So we will start with very basic. You know? We will assume that acid is basically गरीब आदमी, गरीब, ठीक है? We will study अमीर गरीब concept, right? Acid is गरीब, है ना? Poor, okay? And base is अमीर, rich. Now when we talk about chemistry, start कर रहे हैं अभी start कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना, start कर रहे हैं. Okay, they just started. So when you talk about what is this Amir Garib, now when you talk about chemistry, when you talk about compounds, right? क्या exchange करते हो बताओ? What is being exchanged? Tell me. When you talk about one atom to other atom, what is exchanged? Elements to like different
specific atoms होते हैं ना, right? Electrons, very good Priya, very good. Electrons, correct. So electrons exchange, है ना? ये तो basic है ना? Electrons are exchange, yes or no? Right? है ना? So when you talk about this Amir or Garib, poor and rich, don't you think it is something, it has something to relate with electrons, yes or no? Right? अब एक simple example आता हूँ. Suppose मेरे पास ज़्यादा electron है, I'm having more electron, है ना? Right? I'm having more electron. I'm having more electrons so that I can give electron to someone. So I will be poor or I will be rich. Tell me. I will be poor. Rich. I will be rich, yes. But suppose I want electrons, है ना? Suppose I want electrons, then I will be poor or I will be rich. Sir, poor. Poor, right? So I hope all of you understood this Amir Garib. है ना? So now what it has to do with acid and base, right? Now the question is, sir, what it has to do with acid and base? So let us see. Now, when you talk about acid and base, obviously there are different definitions depending on the scientist, है ना? So there are actually 3 scientists who gave the concept of this acid and base. So the first scientist name was Arrhenius. Okay, Arrhenius. So that is the name of the scientist. That is the name of scientist. Okay, right? Now, when you talk about this theory, according to Arrhenius, he said that, okay, boss, right? He said that, I'll just write down first, then I will explain. Okay? He said, any compound, okay, which release means gives, gives, right? H plus is called as acid. It's called as acid. Okay, and any compound which release, right, OH minus is called as base. Okay, so that was the first definition, the first foremost definition of acid and base, which was given by the scientist called as Arrhenius. The name of the scientist is Arrhenius. That is why this theory, this type of acid base is called as Arrhenius acid or Arrhenius base. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आदित्य, बिंदु, प्रिया? सर एक बार स्लाइड दिखाना सर ऊपर का. Okay, this one, बस यही लिखा मैंने, और कुछ लिखा है? सर नोट कर रहा था. हाँ, okay, right? So I can say that, okay, okay, right? So I guess all of you noted it down, है ना? Yes sir. Okay, chalo, very good, very good. Okay, so now this definition of acid and base was given by Arrhenius, है ना? So these kind of acid and base are called as Arrhenius acid or Arrhenius base. Now take an example. Everyone, tell me. Suppose I'm writing HCl, right? What's the name of HCl? What is the name? Tell me. Can anyone tell me what is the name? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Yes, so hydrochloric is the name, right? And if you talk about basic names, so it is hydrogen chloride, right? Or hydrochloric acid, yes or no? Like acid. So see, name also says acid. Now, if you talk about HCl may anion is constant. Tell me, what is the anion in HCl? What is anion in HCl? The hydrogen. Anion क्या होता है? Positive charge, negative charge? Sir, negative. Negative, right? Anion is negative charge. The chloride. Yes, correct. And H plus is positive charge. So if you break this HCl will give what? H plus. HCl will give you H plus. So tell me, if it is giving H plus, is it your acid or base? Acid. Correct. Very good.
Now, what about this? Tell me, what about H2SO4? Tell me, what about H2SO4? This is called as hydrogen sulfate, right? No, this is called as sulfuric acid. So tell me, in this case, which is your cation? Tell me, which is your cation? Tell me. H plus, correct. And SO4 is your Anion. anion. So see, valency is 1 and here valency is 2. So cross multiply, we will get this. Yes or no? I hope all of you remember this, right? Right? So this is example of what? This is example of acid. I hope all of you understood the example of acid, right? Now, when you talk about this compound, tell me, suppose you talk about this compound, NaOH. Now here, what is cation, guys? Tell me what cation? Sodium. Na plus, correct. Very good. Sodium is a cation, Na plus is a cation. And what is anion? OH minus. OH minus. Very good. So here it is releasing which? Tell me, it is releasing H plus or OH minus? OH minus. OH minus. So this is what? This is called as sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Okay. So this is, yes, this is a base. This is a base. Got it? Yes or no? Everyone got this? Right? So this is a base. So I can say that, okay, sir, this I understood. For example, KOH. KOH is also your what? Base. Potassium hydroxide. Potassium hydroxide. Yes. Okay. It's also base. So I understood. Okay, so I understood these things. And all of you understood these things, right? What is sodium hydroxide? What is potassium hydroxide? What is sulfuric acid? So there are many types of acid and bases. I hope all of you remember the chemistry. You can see the table from this language of chemistry, chapter 3. Okay. So this was given by which scientist? Tell me, this was given by which scientist? Arrhenius. Okay, Arrhenius, correct. Right. Now, my question is, okay, what if there's no H plus or no H minus? Tell me, will there be, right? Will there be an acid or base if there's no H plus or no H minus? Suppose if a compound don't have OH minus, right? Suppose a compound doesn't have OH minus. Sir, it will be a salt. Sir, it will be a salt. I'm talking about acid and base only, right? Salt I'm not talking about here right now. Okay, I'm talking about just acid and base. So my question is, suppose there's a compound in which H plus and OH minus is not there, and it is not your salt, right? My question is, can we have a base without OH minus? The answer is yes, right? The answer is yes, because this was given by the first Arrhenius. Now there are many theories. Now the second theory was given by a scientist called as Bronston-Lowry. Okay, right? So we will just write Bronston and take care. Okay, right? Bronston theory, or just write the Bronston theory. So he said that, okay, boss, right? Suppose we don't have OH minus. Suppose we don't have OH minus. Then what? Then he said that, okay, the definition of acid is same. The definition of acid is same. What is the definition of acid? The definition of acid was Any same. compound which gives H plus is called as acid. Yes. Any compound which gives H plus. Okay, now he added one more point. He added, okay, boss, this is the thing. Any compound which gives H plus or except OH minus. Okay, now in same way, base. So base, he said, any compound, it is the extension, right? Extension. Exactly, right? But see,
when you talk about the definition, है ना, पहले क्या था, OH minus होना था ना, according to Arrhenius, OH minus should be there, right? But यहाँ पे क्या ये बोल दिया, any compound which takes OH minus or, right? Sorry, which gives OH minus, my bad. Which gives OH minus or accepts H plus. H plus, yes or no, right? अब देखो यहाँ पे अगर OH minus नहीं भी है, if there's no OH minus, right? अगर OH minus नहीं है, but a compound is accepting H plus, then it is called your, tell me, acid or base? Base, very good. अब example देखते हैं, ठीक है? Why this is important? Now, tell me this. H2O gives H plus plus OH minus, right? अब बताओ H2O क्या है, एसिड के बेस कि दोनों, ये कुछ नहीं, टेल मी Acid. कैसे, ये तो H plus भी दे रहा है, OH minus भी दे रहा है, राइट? So it is neutral, ना, it is neutral, right? है कि नहीं? This is neutral, right? It is neither acid nor base, yes or no? है कि नहीं? Right? समझ में आ रहा है ना? Right? But when you talk about this, ठीक है, अब एक चीज बताओ, we know that whenever we talk about any compound, right? If it is giving something, है ना? If it is giving something, there must be someone who will be taking that, yes or no? Right? Yes or no? Tell me. Priya, Sandhya? Yes, sir. Right? Tanushree, both Tanushree are absent. Okay, right. So can I say that there's a term called as conjugate. This term called as conjugate. समझो ये. Sir, can Conjugate. you show the previous slide? This one, right? So what's the meaning of conjugate? For example, suppose there's a Amir. Right? Amir will give money to whom? Tell me. Poor. Garib. Poor, Garib. Right? So Sir, can you show the previous slide, sir? wait, right? Wait now. Let me complete this, right? So for Amir, who is the conjugate of Amir? Who will be the conjugate of Amir? Garib, right? है ना? है कि नहीं? And for Garib, conjugate is Amir. Makes sense? Yes or no? Right? So this is the previous slide. I'll send it. Don't worry, I'll send it. ठीक है? I'll send it. Okay. Now let me ask you this. When you talk about this, now suppose I talk about H2SO4. Same H2SO4. है ना? H2SO4. Suppose H2SO4 gives one H plus. After giving one H plus, what will be left with? Tell me, what will be left after giving one H plus? We are left with, tell me. Sir, one more H. Yes, HSO4 minus, yes or no? एक H हटा दोगे, एक H plus हट जाएगा, तो क्या बचेगा? HSO4 minus बचेगा, yes or no? सबके समझ में आ रहा है? प्रिया, आदित्य, संजना, संध्या? Yes, sir. प्रिया, सानवी, विहान? Yes, sir. Nabil? Okay. Now tell me, for this is an acid, yes or no? This is acid. Makes sense? Everyone agree that this is acid, yes or no? Right? Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? No, sir. No. But what is this then? What is this? Base. Base. Very good. Base. है ना? Base. Which base? It is called as conjugate base. Yes or no? Yes, sir. और किसका conjugate है? किसका conjugate है? Acid. H2SO4. What is this conjugate, sir? I didn't understand. So see, conjugate क्या होता है? जैसे बता रहा हूँ ना कि अगर मैंने पैसे दिए या मैंने राइट इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैं क्या बन जाऊंगा? यहाँ पे H2SO4 है, राइट? H2SO4 इज एन एसिड, है ना? राइट? सो एक H+ रिलीज होने के बाद ये क्या बन गया? H2SO4 बन गया, H2SO4 माइनस बन गया, राइट? यस और नो? नाउ टेल मी, HSO4 माइनस जो है, राइट, इट विल एक्सेप्ट दिस H+ टू गिव H2SO4, यस और नो? HSO4 will accept H+ का? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो अगर HSO4 एक्सेप्ट कर रहा है H+, तो वो क्या बन रहा है? क्या है वो?
बेस है कि एसिड है? Base. बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? यस और नो? और वो किसका कॉन्जुगेट है? किसका कॉन्जुगेट है वो? टेल मी, किसका कॉन्जुगेट है ये? I didn't understand, sir. हाँ, I'm saying H2SO4, H2SO4 is an acid, yes or no? Yes, sir. Right. After releasing, so it will release H plus, it will give H plus, yes or no? Right? Yes, So after sir. giving H plus, what it will become? What it will become? HSO4 minus. H4 minus. Everyone got this? Yes or no? Yes, sir. Okay. Everyone, Nabil, Aditya, Vihan. Yes, sir. Okay. Now forget about this reaction, right? Forget about this. Now tell me, if you just think HSO4 wants to take one H plus, yes or no? Yes, sir. To become H plus 4, yes or no? In order to become H2SO4, HSO4 will do what? Tell me, it will do what? He will find one H plus. Yes, Take away one. H Remove. plus, right? Now, so it takes one H plus, now it accepts one H plus. So we know that any compound which accepts H plus is also called as Acid. Base. base, Base. right? Base. Yes or no? So conjugate is just a term. Conjugate is just a term. It is actually a base. No, it's actually a base. So conjugate is a term to relate it with the acid, right? Just say this HO4 is a base, but kiske respect mein it is a base? Because whenever you talk about acid and base, it is always with respect to kiske respect mein? H2SO4. Got it? Yes or no? Right? So for H2SO4, HS4 minus is conjugate base. Makes sense? Makes sense? Gia, you got it, Gia? Sir. Right? So there's no other definition of conjugate base. It is just a term given to associate any base with an acid. ठीक है? अब simple example में दे रहा हूँ. Simple example दे रहा हूँ. ठीक है? अभी तुम example ले लो HCl का. HCl example ले लो. HCl. HCl क्या देगा बताओ? What will HCl give? H plus plus Cl minus, yes or no? तो यहाँ पे HCl is what? Acid. So what is the conjugate base of HCl? Tell me. Cl minus. Correct. Cl minus. So this is Cl a conjugate base. Yes or no? Right? सबको समझ में आ रहा है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. Suppose I'm talking about NH2 minus. What this H2 minus will do? इसकी क्या टेंडेंसी होगी? If I'm having NH2 minus, right? What it will do? Tell me. सोचो क्या करेगा? Sir, NH2 minus. हाँ, NH2 minus. तो उसके पास कौन सा चार्ज है? Sir, he will find the H Minus charge, negative माइनस charge. चार्ज है. तो ये अमीर है कि गरीब है? Sir, गरीब. गरीब, sir. Find H plus. नेगेटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, राइट? Sir, अमीर है. अमीर है ना, राइट? नेगेटिव मतलब अमीर है. तो ये किससे दोस्ती करना चाहेगा? गरीब से. गरीब. गरीब से. So it will react with H plus. पर हम होते हैं अमीर से गरीब से क्यों दोस्ती करेगा सर? वो भी गरीब अपना से. अरे अच्छा इंसान है ना, अच्छा इंसान है, भला करना चाहता है लोगों का, ठीक है, राइट? सो वो तो NH2 minus plus H plus क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? H3 NH. minus. माइनस NH3 minus. माइनस प्लस माइनस हो गया ना? न्यूट्रल हो जाएगा. Yes. न्यूट्रल हो जाएगा. करेक्ट. NH3 बन गया. सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ या ना? हाँ सर. सर होगा, ये acid होगा. ये NH2 माइनस क्या था? एसिड की बेस. Sir, base conjugate. Base. Conjugative. Sir, दिस इज बेस. दिस इज बेस. ये बेस हो गया. तो ये क्या हो गया? सर फिर NH3 गरीब होगा या अमीर? Sir, conjugate acid. Conjugative. Conjugate acid. Very good. This is conjugate acid. Yes or no? Because ये एक H plus देकर NH2 minus बना लेगा. Yes or no? समझ में आ रहा है सबको? धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत, yes sir. Yes. right?
ओके तो ये तो समझ में आ गया सर, ये तो हमको H प्लस वाला समझ में आ गया ना, ये H प्लस वाला समझ में आ गया। बट नेक्स्ट सवाल, ओके सर अगर मान लो कि हाइड्रोजन रहे ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, OH माइनस नहीं है, तो क्या एसिड नहीं होगा क्या? होगा होगा ना सर, होगा। होगा। राइट, होना चाहिए, यस और नो। तो वो किसके बेसिस पे होगा, वो किसके बेसिस पे होना चाहिए बताओ? सर नंबर ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, एग्जांपल स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, देखो Sir, exchange in electrons. एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, समझ में आया है कि नहीं? राइट, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। सो द थर्ड टाइम साइंटिस्ट वाज कॉल्ड एज लेविस। थर्ड साइंटिस्ट का नाम था लेविस। ओके, सो ही बेसिकली डिफाइंड, अगेन जैसे जैसे साइंटिस्ट है वो अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। सो ही डिफाइंड एसिड एज, ओके, एसिड एज गरीब। गरीब का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी की इलेक्ट्रॉन एक्सेस। Electron excess. एक्सेस अरे गरीब कमी, गरीब गरीब सर है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी, राइट, यस। इन लोगों ने उल्टा कर दिया सर, अमीर को Yes. गरीब, गरीब को अमीर। Acid says that any compound, right, which, अब बताओ गरीब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? देगा सर, उधार देगा। लेगा ना। Sir, लेगा Yes. सर। पूरा बचेगा ही नहीं ना सर गरीब। So accepts electrons, yes or no? Got it? So any compound which accepts, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ when you talk about cation और anion, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? cation को चाहिए कि anion को चाहिए? cation. Cation। आयन। करेक्ट, सो कैटायंस को चाहिए ना, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, है कि नहीं? और व्हाट इज बेस? सर जो इलेक्ट्रॉन देता है। Sir, it gives electron. यस, गिव्स इलेक्ट्रॉन, राइट, सो इट इज बेसिकली एनायंस, यस और नो? अब जैसे एग्जांपल लेता हूं, अभी एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? अगेन ये बहुत ही बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। सपोज AlCl3, AlCl3। अब AlCl3 में, राइट, थिंक अबाउट इट, AlCl3 में आयंस कौन कौन से हैं? टेल मी, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट आर द आयंस इन AlCl3? Al3 plus or Cl minus, yes or no? Yes, sir. Right, yes or no? Tell me, हाँ या ना? Right, yes or no? सर सब लोग लिखने में बिजी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा टाइम दो ना सर, ऊपर वाला स्लाइड दिखाते हैं। Okay, मैं ऊपर वाला टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? I'll just give you time, no issues, right? So in AlCl3, Al3 plus, okay, right? Al3 plus is what? Tell me. Tell me, cation or anion? Cation. Cation, right? So it is acid or base? Acid. Acid. Or which acid? This is your Lewis acid, right? And what about this Cl minus? Anion. Which is The a vice base. This is your basically conjugate, है ना? Conjugate base, right? Okay, so I can say that any molecule or atom, when you talk about Lewis acid, Lewis base, है ना? I can say that any molecule, atom or ions, right, है ना, with excess electron. What? Yes, sir. What? Screen is stuck, sir. No, screen is not stuck. I'm not writing anything. है ना? Right? So example, when you talk about nitrogen, how many electrons nitrogen have? All of you remember in outermost orbit? Anyone remember? No, not 3, 5. Yes or no? sir, है ना? five. 5, right? 5, है ना? So hydrogen have 1 electron, yes or no? Right? All of you remember?
So hydrogen combined with nitrogen with 1 electrons, right? Okay, we will study this, don't worry. अब बताओ इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, yes or no? Right, this is extra electron, yes or no? सर और दो ऐड हो गए। नहीं, देखो तुम लोग भूल गए हो, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताओ? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन? 7 7 yes or no? तो याद है 1s2 फर्स्ट ऑर्डर में कितने थे? 2, सेकंड में 2s2 2p3, yes or no? Yes or no? यस Right? आपने नाइट्रोजन के ऊपर क्यों बनाया? वेट, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो सेकंड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सेकंड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 है ना? राइट, तो याद है ये होता है 1 BHK, 1 BHK में 2 लोग रहते हैं, राइट? याद है? होटल के ओनर। यस, और ये क्या होता है? दिस इज योर 3 BHK, 3 BHK में क्या है? सिंगल सिंगल लोग रह रहे हैं। रिमेंबर, यस और नो? रिमेंबर दिस, राइट? है कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे सिंगल सिंगल लोग रह रहे हैं, तो कितने दोस्त, कितने लोग और रह सकते हैं यहाँ पे? बताओ कितने लोग और रह सकते हैं? और 6 3 ना, 3, राइट? यस और नो? ये इसका रूममेट आ जाएगा, इसका रूममेट आ जाएगा और इसका रूममेट आ जाएगा, यस और नो? अच्छा हाँ सर। हाँ या ना? टेल मी, हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको ना? राइट? सो जो नाइट्रोजन है वो कितने और लोगों से दोस्ती कर सकता है? और 3 लोगों से। 3, राइट? तो यहाँ पे 3 जो है वो तीनों एक इलेक्ट्रॉन से होने चाहिए, तो हाइड्रोजन 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 3 हाइड्रोजन से दोस्ती कर लिया, बट इसके पास ये क्या है? ये तो रूम फिल्ड है ना, दिस फिल्ड रूम, राइट? है कि नहीं? तो ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? So this extra electron is called as something called as lone pair. इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। समझ में आया? अकेला है ना, ये दो अलग है। सर लोन पे रह रहे हैं। हाँ, इट इज कॉल्ड एज, इसका नाम है लोन पेयर। क्या है इसका नाम? लोन पे। लोन लोन पे। पेयर, है कि नहीं? अब एक सिंपल सा मतलब, ऑक्सीजन याद है? ऑक्सीजन, क्या सर? ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 8 तो ऑक्सीजन का देखा जाए तो वो क्या है? 1s2 है ना, 1s2 2s2 2p4 ना, है कि नहीं? राइट? सबको समझ में याद है कि नहीं? सबको भूल गए हो सबको? ये सर थोड़ा केमिस्ट्री चल रही थी, बहुत महीने हो गए सर। रिवाइज करना पड़ेगा, है ना? वही देखो मैं इसका बता रहा हूँ, 2s2 में क्या है? 1 BHK फिल हो गए, 2 है, 2 लोग बड़े में है, राइट? तो फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज 3 BHK। So when you talk about 3 BHK, तो पहले क्या है? पहले सिंगल चले गए लोग, बट यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। सर और तीनों में भर जाएंगे। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 4 है। 4 ना, 4 है, तो एक और यहाँ पे फिल होना चाहिए, यस और नो? यस सर। सर राइट? एक में एडजस्ट कर देंगे। एक एडजस्ट हो गया। अब बताओ यहाँ पे कितने रूम पूरा फिल हो? कितने रूम पूरा फिल है? सर 2 2 रूम पूरा फिल है ना, करेक्ट। और कितने रूम खाली है? 2 2। तो ये कितने लोगों से दोस्ती कर सकता है? 2 तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 8 वैलेंसी वेरी गुड। तो एज ए सेड, बताओ ये जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वो क्या बोलेंगे? लोन पे। करेक्ट, वेरी गुड। तो इसके पास कितने लोन पेयर है? इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। गॉट इट, यस और नो? सर अकेले वाले को कुछ भी नहीं बोलते। नहीं, अकेले वाले को सिंपल इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब जैसे देखो, अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पता नहीं सर। अरे एक ना, हाइड्रोजन पहला होता है ना, एक। तो ये क्या होगा? 1s1, यस और नो? यस सर, बस खत्म। एक में यस, तो ये सिंगल 1 BHK में अकेले है बेचारा, तो इसको भी दोस्ती करना है कि सारा नहीं? बहुत अकेला है सर तो वो एक से दोस्ती कर सकता है। हाँ, तब देखो, अब इसको, ये जो है, अब यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने
वैकेंसी है, 8 वैकेंसी Two. Vacancy two. एग्जैक्टली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और लोन पे कितना हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट Two. ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर के साथ दिखा, ठीक है, राइट। और ये भाई साहब हमारे हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये भाई साहब हाइड्रोजन, ये भी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो अब ये क्या करेगा, ये दोस्ती करना चाहेगा कि नहीं, उसमें खाली है, उसमें जाके बैठ करेंगे जाए। सर, करेंगे और पानी करेंगे। बनाएंगे। एग्जैक्टली, दोस्ती करेंगे, दोस्ती करके हम, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर लिया और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर लिया, यस और नो, और फिर रूम शेयर करके राइट। बैठेंगे। हाँ, रूम शेयर करेंगे, बिकॉज वी नो कि किसी भी एटम के पास स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 8 है ना, ये तो 18, यस और नो, याद है, याद है सबको? नहीं तो 18। Yes, sir. तो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। टोटली 2। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि नहीं करेगा, Yes, sir. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है बेचारा, ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है। बताओ ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 कितने हो गए, सर देख के तो लगता है ऑक्सीजन नहीं करना चाहता। 10 2 2 4 2 6 और 2 8, कितना हो गया, 8। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 2. कितने क्या electrons? सर? ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 2। और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में 2। तो इसको ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड से, तो वो इसको हम जोड़ दी बॉन्ड से, इसको बोलते हैं बॉन्ड, H। और ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये क्या है, लोन पेयर ना, लोन पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया, यस और नो। सर बस थोड़ा ऊपर दिखाओ, पता नहीं थोड़ा सा चला। ऊपर। So this is called as structure. This is called as Lewis structure. It is called as Lewis structure. सही होता- का नाम से। अब एक चीज बताओ, yes, I'll repeat अनुश्री, एक चीज बताओ, when we studied chemistry, है ना, याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग क्या किया था, टाइप ऑफ कंपाउंड पढ़ा था, yes or no? कैसे स्टार्टिंग? स्टार्टिंग जो केमिस्ट्री किया था हमने, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ा था। हाँ सर। Yes. So when we started with right ionic compounds, yes or no? हाँ। So ionic compound कैसे, what was ionic compound? What was ionic compound? Tell me. कैटायन। जिसमें इलेक्ट्रॉन का, yes, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता था, yes or no? Either I give electron or I take electron, yes or no? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है क्या, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, नहीं ना, यहाँ पे क्या करे, शेयर कर रहा है, yes or no? शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो ये जो कंपाउंड है इसको कैसे बोलेंगे, कैसा कंपाउंड है, याद है, ऐसे स्टक हो गया सर। दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड, याद आया, कैसे? Covalent कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब बताओ यहाँ, अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। सो ऑक्सीजन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो outermost orbit में 6 electrons. So it will be what, 2s2 2p4. I hope all of you remember this. अनुश्री ये याद है, 2s2 2p4. Okay. So when we talk about this 2s2 2p4, this is the electron. This is the electron configuration, है ना? It is electron configuration. So 2s2 मतलब 1 BHK फिल हो गया, S वाला फिल हो गया, 2p4 तो it is 3 BHK जहाँ पे एक फिल हो गया, दो में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 2 है, 2 है ना, मतलब दो दोस्तों से दो लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 राइट, यस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन आल्सो हैव 8 6, outermost में 6 इलेक्ट्रॉन्स ना, outermost में 6 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। So hydrogen will share 1 electron of oxygen, right? Both the hydrogen will share 1 electron of oxygen, right?
and oxygen will also share 2 electrons of hydrogen, right? So this compound which is formed due to the sharing of electrons is called your covalent compound, and we represent it as this, right? And this is called as bond. It's called as bond. So this is which kind of bond? This is which kind of bond? Bonding of electrons. This is covalent bond. क्या सर? Covalent Covalent bond, no? compound is equal to covalent bond. है कि नहीं? शेयरिंग से क्या बना? कोवेलेंट का बॉन्ड कोवेलेंट बनेगा. दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल. ठीक है, समझ में आया? ओके, यूजुअली वी विल कंसीडर 2 and 8 ओनली. ठीक है, राइट? बिकॉज़ 10 का मतलब भी वही हो गया ना, 2 8 18 एक्चुअली होता है. ठीक है. Now let us see one more example. Okay, NH3. अब इसका बनाओगे स्ट्रक्चर. Everyone, can you draw the structure of NH3? Step by step. Start with N. N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर N नाइट्रोजन है ना? 7. Yes, N is nitrogen. 7 है. तो क्या हो गया? 1s2, then 2s2, 2p3, right? है ना? तो 1 BHK full. 3 BHK. 3 BHK में एक इलेक्ट्रॉन. सर दो नंबर है. 1 और हाइड्रोजन के पास क्या? एक. 1 Yes. 1. तो क्या होगा? कैसे शो करेंगे? नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक. 9 सॉरी 3. 8 6 सर. गाइस काउंटिंग हुई है क्या? ये 2 लोन पेयर सर है. नहीं सर, ऊपर 2 आएंगे. 2 लोन पेयर, सर, राइट? यस. और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 7 आएंगे. 2 5. यस. यस और नो? और हाइड्रोजन के पास कितने? एक. सर 1 बस. यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 और हाँ यहाँ भी सर, हाइड्रोजन के नीचे भी और लेफ्ट में भी. हाँ सर, 8 2 2 2 बन गया सर. नीचे वाला है. 3 covalent bonds. पास. Sorry guys, I started sneezing. Okay, I was mute. I was saying that it will share, right? And what about this nitrogen? Nitrogen will also share like this. Yes or no? अब बताओ, in this nitrogen वाला गोला, red गोला, how many electrons are there? For 3. सर 8. Count total number of electrons. 8. 8. 10. 8, right? है ना? 8. 5 plus 3, 8. So nitrogen के पास हो गए 8 electrons. What about hydrogen? Each hydrogen have how many electrons? सर 2 2 2. 6 सर नाइट्रोजन के पास 7 है तो 8 कैसे हो गए? अरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बात होता है ना. वही सर. कैसे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? सेकंड वाला ना, हाँ सर. है कि नहीं? Got it? यस सर, गॉट इट. ओके. तो अब बताओ, यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाया जाए तो कैसे हो जाएगा? N, फिर एक हो गया H, एक हो गया H और एक हो गया H. और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया ना? यस और नो? सर लोन लोन पेयर, राइट? लोन पेयर. सबको समझ में आ रहा है लोन पेयर क्या हुआ? सर इजी है. इजी है, समझ में आ रहा है ना? चलो एक और देखते हैं. ठीक है, जैसे हम बनाते हैं. अब यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो लेवल्स, एसिड लेवल्स बेस के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई लोन पेयर होता क्या है ना, कंपाउंड बनते कैसे हैं. तो दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट? दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो हमको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आ गए और हमको आयनिक कंपाउंड्स तो पहले भी आता था. यस और नो? राइट? अब जैसे देखो एक और
एक और कोवेलेंट कंपाउंड, एक बड़ा सा कोवेलेंट कंपाउंड देखें। अच्छा, मैं अगर पूछता हूँ व्हाट इज H2SO4, इट इज कोवेलेंट और आयनिक और मिक्स? Sir, mix. It is mix, yes, it is mix because sir H2 जो है H plus, ये क्या है? This is your ionic SO4 2 minus, minus. right? But SO4 2 minus क्या है? SO4 2 minus भी तो S और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है ना, हाँ या ना? Yes, Right? sir. S और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो देखिए क्या इसका, देखिए SO4 2 minus का देखिए स्ट्रक्चर, ट्राई Yes, करिए। sir. Yes. चलो अब S के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ, S के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? भूल गया सर. सल्फर, सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन 16 है ना। तो क्या 1s2 1s2 हो गया, फिर 2 2s2 2p6 2 3p6 yes, sir. 2p6 खत्म हो गया। अब आगे थर्ड ठीक है 3s2 3p, बताओ 3p कितना हो गया? 4 10 खत्म, 10 खत्म, तो 3p4, यस और नो? 4 राइट, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। बट इसके पास एक और 3d खाली है, 3d खाली है, ध्यान दो 3d खाली है ना। हाँ सर 3D खाली रहेगा. 5 BHK खाली है इसके पास, ध्यान देना 5 BHK खाली है इसके पास, ठीक है राइट। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्टेप बाय सर स्टेप बन जाएगा. ये हो गया। और सर 5 BHK क्या है, 5 BHK पूरा पूरा खाली है, यस और नो? हाँ सर. 1 2 3 4 5 5 BHK पूरा खाली है। एनी इश्यूज? ये No, थर्ड sir. ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट का। एनी इश्यूज इन दिस सल्फर? ओके फिर बात करते हैं No, sir. ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 तो 1s2 2s2 2p4, राइट। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 सर इसमें एक फुल रहेगा और दो एक एक. ओके अब एक चीज बताओ, एक है ऑक्सीजन और एक है सल्फर, दोनों में राइट। अब इट्स लाइक, अब देखो ये जैसे क्या है, ये SO4 है ना, SO4 क्या है? फैमिली है, सपोज ये फैमिली है। तो बताओ क्या लगता है इस फैमिली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन होगा, सल्फर की ऑक्सीजन? सल्फर 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 राइट, सल्फर. सल्फर। तो बीच में हम किसको रखेंगे, बीच में किसको रखेंगे? ऑक्सीजन सल्फर 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 राइट। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन कितना है? 8 नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे SO4 में ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 4 4 है ना 4, ऑब्वियसली 4। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ओ ओ ओ ओ लगा देंगे पहले, है ना, पहले रखेंगे। सोचो एक बार, सोचिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंसेप्चुअल है, टाइम लगेगा इसमें, है ना, कंफ्यूज भी हो जाएंगे हम लोग। अब एक चीज बताओ सर ओ में 2 ऊपर जाएंगे. वेट सोचो एक स्टेप बाय स्टेप। सर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक की दो? सर एक अरे दो. दो ना, दो राइट। सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ पे इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यस और नो? राइट, दे आर नॉट द लोन पेयर, दे आर नॉट द लोन पेयर, दे आर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लोन पेयर तो रहेगा ना, 2 लोन पेयर अलग से है, राइट। I'll just show the lone pair with red color or green color. I'll show the lone pair with green color. I'll show the lone pair with green color. ठीक है ना, ये बस एक साइड लिखना था इसलिए लिख दिया। ओके यहां तक सबको समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप? यहां तक सबको समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप? हाथ उठा लो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत बहुत कंसेप्चुअल है, तो नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। जिया, सानवी, आकर्ष, विहान, तनुश्री, यहाँ तो सबको समझ में आया? सर एस का डॉट. अभी लिखेंगे ना, अभी लिखे, अभी एक एक करके बना रहे। पहले क्या है, पहले जब घर में मम्मी कुछ खाना आती है तो पहले क्या करती है, पहले साथ में बच्चों खिलाती है फिर खाती है, यस और नो, है कि नहीं? राइट। तो ऐसे ये Yes, एस क्या है, एस इज लाइक
the eldest in सर the आप फिर family. से खाने का बात किए। My all examples revolve around food, right? तो S पहले क्या कहेगा? तो बताओ, S is like मम्मी। तो S सबका पहले क्या है? सबको स्टेबल बनाएगा ना, है कि नहीं? S क्या कहेगा? S सबको स्टेबल बनाएगा, yes or no? अच्छा, एक और चीज देखो, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, yes or no? SO2 माइनस, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिव चार्ज है, yes or no? दिख रहा है ना, राइट? 2 नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? मत चलो, Yes, sir. राइट? तो 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है सर? ये जो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम एक नेगेटिव चार्ज यहाँ दे सकते हैं ना, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया मैंने, है कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसको सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए ना, है कि नहीं? राइट? ये भी 2 रोटी खाता है, ये भी 2 रोटी खाता है, एक रोटी कोई और दे दिया, तो सल्फर से कितना रोटी चाहिए? एक, यस और नो? और जरूरी नहीं कि सर आप इन दोनों क्यों, इन दोनों को दे, किसी को भी दे सकते, किसी को भी, ठीक है, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, है ना? तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, यस और नो? सो आई विल जस्ट रिमूव दिस। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन रेड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसको अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। अब 7 इलेक्ट्रॉन पास हो गए हैं, पहले 6 था और एक और ले लिया। सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितना था? 6 था, यस और नो? सही। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितना है? सर नेट प्रॉब्लम सर, एक कैसे है? एक ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है ना, देखो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 2 माइनस? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 2 माइनस? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई लिया हुआ है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया था ना बाहर से इलेक्ट्रॉन, दैट इज द मीनिंग ऑफ 2 माइनस, यस और नो? राइट? हाँ या ना? अब तुम सवाल पूछो, हमें डाउट होना चाहिए, सर दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? अब खुश, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो इसको सल्फर से कोई लेना देना रहेगा क्या? नहीं ना। तो नहीं सल्फर सर, वो अपना तोड़ के चला जाएगा। तो चला जाएगा, राइट? तो सल्फर के साथ नहीं रहेगा, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है ना, यस और नो? तो उससे तोड़ के चले यस गए। सर। एग्जैक्टली, एक और कोई और ऑक्सीजन लेगा क्या सर? एग्जैक्टली, यस। तो इसीलिए ना एक और इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन लेगा, राइट? ओके, ज्यादा घट गया। सर आपने ऐसे क्यों किया सर? मुझे भी अभी एरियस भी नहीं कर सकता मैं, पेंसिल भी। राइट? तो अब ये ले लिया, ये एक जो बाहर से आया, और ये पहले वाला। तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सल्फर क्या करेगा भाई? ठीक है सल्फर भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये ऑक्सीजन ले लिया इससे, और ये ऑक्सीजन ये ले लिया इससे, ओके, राइट? बट अब इसको कितना सर चाहिए? 2 का हो गया अब इसको कितना चाहिए? इसको कितना चाहिए? सर, ऊपर और नीचे दोनों को 2-2 चाहिए। मुझे, और ये दोनों, ये लोन पेयर नहीं है ना, दिस इज नॉट लोन पेयर, राइट? दिस इज नॉट लोन पेयर, है ना? ये नॉट लोन पेयर नहीं है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है? मैंने इसको साथ में लिखा है, बट इट इज नॉट लोन पेयर। ये लोन पेयर है क्या? दे नॉट लोन पेयर, राइट? है ना? बट इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। बट सल्फर को 2 इसको भी देना है, 2 इसको देना है, तो सल्फर पास होने कितने चाहिए थे? 3। अरे 2 इसको, 2 ऊपर वाले को देना है, 2 नीचे वाले को देना है, तो टोटल होने कितने चाहिए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 4। बट अभी कितना है यहाँ पे? अनपेयर्ड सिर्फ 2 है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? बट अगर एक एक देगा तो ये दोनों का पेट भरेगा क्या? खुद सोचो। मांगेगा, राइट? नहीं ना, अनस्टेबल नहीं रहेगा ना। तो ये क्या करेगा? सोचो, कोई और तरीका है क्या? कोई और तरीका है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके पास। इलेक्ट्रॉन तो किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा नहीं, इसके पास खुद तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मांगेगा क्यों? अब देखो यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 सर। 2। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाए, सपोज इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाए, थिंक अबाउट इट, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल रूम के, अच्छा नहीं लगा सर। हाँ रूम अच्छा नहीं, यहाँ निकल गया, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा तब? कैसा हो जाएगा बताओ? ये जैसे वैसे रहेगा, सब में एक एक
एक एक एक, और ये जो पूरा खाली था ना 5 BHK खाली था, हाँ सर, एक 5 BHK में चला जाएगा एक रूम। यस, तो 5 BHK में कहा गया। अब बताओ, अब यहाँ पे कितने खाली लोग हो गए? 4 4 4। 4। गॉट इट। तो दो रूम इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, है कि नहीं, और 2 इसको दे देगा, और इसके पास तब भी एक लोन पेयर बच जाएगा कि नहीं? बच जाएगा। एक लोन पेयर में यहाँ पैसे शो करूंगा, ठीक है, दिस वन लोन पेयर, राइट। ओके, तो बताओ ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 + 2 8। ये इसके साथ कैसे कंबाइन कर रहा है, तो कितना हो गया? 6 + 2 8। अब बताओ, अब इसको तो कंबाइन करना ही पड़ेगा ना, इसको सब कंबाइन करना ही पड़ेगा, यस और नो? तो ये भाई साहब, ये ऑक्सीजन जो है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कंबाइन कर दिया ऐसे। अब बताओ, अब यहाँ पे अगर तुम बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड होगा तो क्या होगा? एस को बीच में रखेंगे हम, यस और नो? एस को भी बॉन्ड को बीच में रखेंगे, हाँ या ना? हाथ चलो, Yes, राइट। sir. ओके, और ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन एस से कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझो स्टेप बाय स्टेप। सर 2 1 सर 1 एक। तो कितना कितना बॉन्ड बनेगा, 1 कि 2? 1। बट इलेक्ट्रॉन बाहर से भी ले रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से भी ले रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिखेंगे हम, बाहर से मतलब 1 नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ है ना? जिया समझ में आ रहा है जिया? Yes, sir. अब बताओ, ये वाला ऑक्सीजन कितना ले रहा है? Ba, बट बाहर से कॉल ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव है ना। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है? सर 2 2. तो 2 बॉन्ड, यस और नो? और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन कितना? 2. 2। तो यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। अब समझना है सबको कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, हाँ या ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है? दिस इज कोवेलेंट और आयनिक? आयनिक। अरे ये अभी ये हम अब बता रहे ना, ये कोवेलेंट है ना, शेयर कर रहा है ना, राइट? ये शेयर कर रहे हैं कि नहीं? शेयरिंग मतलब कोवेलेंट, समझ में आया? शेयरिंग मतलब कोवेलेंट, राइट? एक्सचेंज, एक दे देना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देन इट इज आयनिक। क्लियर हो गया? ये स्टेप बाय स्टेप, ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। गॉट इट? नो, अप्स एंड डाउन will not be written as negative because तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या? ऊपर वाले ऑक्सीजन बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या? टेल मी, तनुश्री, संध्या? नो, राइट? है ना? so that is why it will not be negative, ठीक है? सो देखो, इसी को पूरा मिलाकर क्या लिखते हैं? इसी को लिखते हैं हम SO4, राइट? 2 माइनस, एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ, 2 माइनस, ठीक है? गॉट इट? है ना? बेसिक, बहुत बेसिक, राइट? ओके, सो मैं होमवर्क दूंगा, सिर्फ 5 स्ट्रक्चर बना के लाना है, ठीक है? 5 स्ट्रक्चर, ठीक है? बन जाएगा 5 स्ट्रक्चर, ओके? सो आई होप ऑल ऑफ यू, है ना? तो समझ में आया सबको? सीखा कुछ? देखो, अब ये एक्चुअल केमिस्ट्री है, दिस इज एक्चुअल केमिस्ट्री,